Now let's see some of the important provision. Provision for bad debts, provision for discount on debtor, provision for repair and renewals, provision for discount on creditors, and provision for taxation. These are some of the provision. There are a lot of provision created by the companies, but we will see the main provisions according to your syllabus. कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान और आयोजन जो कि कंपनियां बनाती है उसमें शामिल है दुबत ऋण का प्रावधान, देनदार पर छूट का प्रावधान, मरम्मत और नवीकरण का प्रावधान, लेनदारों पर छूट का आयोजन या प्रावधान, करों के लिए आयोजन। कंपनियां बहुत से प्रावधान और आयोजन बनाती है, लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से कुछ मुख्य प्रावधान और आयोजनों को देखेंगे। अब हम इन प्रावधान और आयोजनों को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। नाउ वी विल सी दिस प्रोविजंस in detail. When the businessman is not able to recover the amount from the debtor because of the incapability of the debtor due to any reason, then this is called as bad debts. The amount which cannot be recovered is known as bad debts. So this type of bad debt is a loss for the business, and to secure from such losses, a provision is created at a certain percentage or at a certain amount on the debtor. So, for the future expected losses due to the unrecoverable amount from the debtor, a certain amount is kept aside out of the profit. This amount is the provision for the doubtful debt. This provision is created to note the actual position of the debtor. That means how much amount can be recovered from the debtor. So, how much is the actual amount of debtor from whom we can receive the money. It also provides financial security against the future uncertainty. And it will also show the correct amount of debtor in the balance sheet, and thus it will show the correct and exact position of the business. Exact economical position of the business. It will also decrease the profit of that particular year, and therefore the tax applied or imposed on that profit will not be high. Next provision is the provision for the discount on debtor. As the name indicates, this provision is created to provide discount to the debtors who will pay early from the date given to them. In modern times, most of the dealings are on the credit basis because of the bulk production and bulk buying and selling. In order to stimulate the debtor to make the payment in time, businessman gives some concession to the debtor if they pay on the time. Such concessions are given only on the cash payments, and therefore it is also known as cash discount. There are some customers who become the debtor in the current year but are likely to pay us in the future. If the cash payment is made on the due date, then the businessman gives the discount, which becomes the loss of the year in which they are the debtor. Actually, the entry for the loss should be made in the same year, but due to the non-receipt of the payment, entry for the discount could not be done. So, the provision will be created for the discount on the debtor out of the profit. So, the provision out of the current year profit is made so that even if the discount is allowed to the customer in the future, loss due to that discounts affects the profit of the current year only. This provision is known as discount on debtor or the reserve for the discount on debtor. Next provision is the provision for repair and renewals. Repair and renewals are daily done in the business, but the amount incurred on the repairs and renewals are uncertain. They affect the profit and loss of the business. So, a provision is created to meet such expenses, and this provision is known as the provision for the repair and renewals. Next is the provision for the discount on creditors. As the reserve is made for the discount on the debtor, similarly a specific reserve or provision is created for the discount on the creditor. When the payment is made before the due date to the creditors or the supplier by our business, the benefit of such discount is received. To calculate the correct profit, it is necessary to make the entry for the discount received from the creditors. So, if the business knows that it can pay the creditor before the time,
then it will also create the reserve. So a provision is created for the discount on the creditor. Next is the provision for taxation. We all know that every businessman have to pay the taxes on the profit. Not only on the profit, there are different types of taxes that a business have to pay. Every year business have to pay the taxes, but many times the business pays the taxes in the future period. So in order to reduce the profit of the current year because of the tax of the current year, it is necessary to create the provision for the taxation. अब हिंदी में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान और आयोजन। तो सबसे पहला है आपका डूबत ऋण का प्रावधान। इसे हम अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए बनाया हुआ आयोजन भी कहते हैं। आप सभी को पता है कि व्यवसाय में कुछ ऐसे देनदार होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं समय पर और जिनसे कभी कभी पैसा मिलना मुश्किल पड़ जाता है, पैसा नहीं निकल पाता है, वो असमर्थ हो जाते हैं पैसे देने में किसी भी कारण से, दिवालिया होने से या किसी और कारण से भी। तो जो पैसा डूब जाता है ऐसे देनदारों से, उसे हम बोलते हैं डूबत ऋण या अशोध्य ऋण। तो एक प्रकार की ये हानि होती है हमारे व्यवसाय के लिए और इस हानि से बचने के लिए देनदारों के ऊपर एक निश्चित राशि का प्रावधान किया जाता है। इस प्रावधान को और आयोजन को बनाने का उद्देश्य ये होता है ताकि वास्तविक देनदारों को दर्शाया जा सके। जो चिट्ठा होता है उसमें भी वास्तविक देनदार जो है वह दर्शाए जाते हैं और जो हमारा प्रॉफिट आता है, जो हमारा लाभ दर्शाया जाता है वो शुद्ध लाभ होता है, क्योंकि उसमें से हम प्रावधान जो है उसको पहले से घटा चुके होते हैं। दूसरा प्रावधान जो है वो है देनदारों पे छूट का प्रावधान या देनदारों पे कटौती का प्रावधान, जिसे हम देनदारों पे कटौती का आयोजन भी कहते हैं। वर्तमान समय में उधार विक्रय खूब होता है क्योंकि ज़्यादातर जो भी व्यापार होता है वो थोक में होता है। तो प्रत्येक व्यापारी उधार की जो राशि होती है उसको शीघ्र वसूलना चाहता है, जल्दी लेना चाहता है अपने देनदारों से। तो इसलिए वो क्या करता है, वो देनदारों को प्रोत्साहित करता है कि अगर उन्होंने समय से पहले भुगतान कर दिया या समय पर भुगतान कर दिया तो वो उन्हें जो है कुछ कटौती देगा, कुछ बट्टा देगा। इस प्रकार की कटौती जो व्यापारी द्वारा दी जाती है समय पर भुगतान करने के लिए, उसे हम जो है कैश डिस्काउंट, नगद बट्टा भी कहते हैं। अब इस प्रकार की जो कटौती होती है वो होती है इस वर्ष से संबंधित, और इस प्रकार की कटौती देने से जो हानि होती है वह भी इस वर्ष की ही हानि होती है। तो वास्तव में इस हानि का लेखा इसी वर्ष हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि भुगतान प्राप्त हमें नहीं होता है कई बार, और भुगतान प्राप्त करने की जो तिथि होती है, जो सही समय होता है, वह भी कई बार नहीं आया होता है। तो ऐसे में कटौती का लेखा हम नहीं कर सकते हैं। अतः हम क्या करते हैं, अंतिम खाते बना लेने के पूर्व इस कटौती के लिए एक आयोजन बना देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, अंतिम खाते विश्वसनीय बनते हैं और जो हमारा लाभ होता है उसमें से पहले से ही क्या हो जाती है, कटौती जो होती है, जो देनदारों पे हम देने वाले होते हैं, वो घट जाती है, जिससे कि हमारा सही और शुद्ध लाभ दर्शाया जाता है। दूसरा प्रावधान और जो आयोजन है वह है मरम्मत और नवीनीकरण का प्रावधान या मरम्मत और नवीनीकरण के लिए आयोजन। मरम्मत और नवीनीकरण प्रत्येक व्यवसाय में आए दिन होते हैं, लेकिन इसकी राशि जो होती है वो हमें ज्ञात नहीं होती है। इसलिए ये भी क्या करती है, हमारे लाभ हानि के खाते पर प्रभाव डालती है, क्योंकि ये एक प्रकार का हमारा खर्चा होता है, हमारे लिए हानि होती है हमारे व्यवसाय के लिए। इसके लिए अब क्या करते हैं, मरम्मत और नवीनीकरण व्यय का जो भी अनुमान होता है वो लगा लिया जाता है और उसके लिए फिर एक आयोजन बना के इस राशि को लाभ में से पहले से ही निकाल दिया जाता है और अलग से रख दिया जाता है। चिट्ठे में इस आयोजन को दायित्व में दर्शाया जाता है, दायित्व पक्ष में, मतलब लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। इसके सिवा जो दूसरा हमारा आयोजन है और प्रावधान है वो है लेनदारों पर कटौती के लिए प्रावधान। ठीक है, लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान। जिस प्रकार हमने देनदारों पे कटौती देने के लिए एक आयोजन का निर्माण किया था, उसी प्रकार लेनदारों से हमको क्या होती है, कटौती प्राप्त होती है। और ये जब भी हमें प्राप्त होती है तो ये हमारे लिए एक लाभ होता है जो हमें प्राप्त होता है, और इससे हमारा क्या होता है, जो भी वर्तमान वर्ष का जो भी प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है। अब हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा वो तो भविष्य में ही पता लगता है, लेकिन हमारे लेनदार अगर इस साल के लेनदार है तो हमें अगर उनसे डिस्काउंट मिलेगा तो वो इस साल के लाभ को बढ़ाएगा, ना कि भविष्य के लाभ को। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, एक अलग से प्रावधान बना लेते हैं
लेनदारों पर जो हमें कटौती मिलती है उसके लिए हम एक अलग से प्रावधान बना लेते हैं और इसको हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। इस प्रकार का जो आयोजन होता है इसको हम बाद में जब चिट्ठा बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें जो हमारे दायित्व पक्ष में जो लेनदार हमारे लिखे होते हैं, क्रेडिटर्स जो लिखे होते हैं उसमें से घटा देते हैं। तो इससे जो वास्तविक लेनदार है, मतलब हमने जितना भी वास्तविक अमाउंट हमको हमारे लेनदारों को देना है कटौती के बाद, वह आसानी से दर्शाया जाता है। दूसरा प्रावधान और आयोजन है करों के लिए आयोजन। आप सभी को पता है कि जो कर होता है वो हर व्यवसाय को देना होते हैं सरकार को, और सिर्फ लाभों पे नहीं, बहुत सी चीज़ों में कर का भुगतान एक व्यवसाय को करना होता है, ये उसका दायित्व होता है। तो जो कर होता है चालू वर्ष के लाभ में से भुगतान उसका करना होता है। तो इन करों का भुगतान हो सकता है भविष्य में किया जाए, लेकिन ये कर इस साल के हैं और इन करों से जो मुनाफा कम होगा वो भी इसी साल का होगा। इसलिए इस साल का सही लाभ दर्शाने के लिए हम इन करों का जो है एक प्रावधान तैयार कर लेते हैं, जिसमें इन करों को चुकाने हेतु जो राशि है वो अलग से रख दी जाती है।